उत्तराखंड कैबिनेट में लिया फैसला, वंचित गांवों में बीएसएनएल 4G टावर को 2000 वर्ग फीट जमीन निःशुल्क प्रस्ताव पर लगी मुहर। आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में धर्मांतरण एक्ट में संशोधन पर लगी मुहर, किए गए कड़े प्रावधान, जबरन धर्मांतरण पर 2 वर्ष बढ़ाया कारावास, जुर्माना भी अधिक। हाईकोर्ट हल्द्वानी पर मंत्रिमंडल ने दी सहमति। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आहूत, नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा सत्र। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, तैयारी पूरी, अनुपूरक बजट पर तो सत्र में होगी चर्चा। भारत स्काउट एंड गाइड्स उत्तराखंड की पहली समीक्षा बैठक में लिया गया फैसला, संस्कृत स्कूलों, मदरसों सहित सभी शिक्षण संस्थानों में होगी स्काउट एंड गाइड की यूनिट। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बयान, कहा 22 वर्षों के संदर्भ में दिया था कमीशन खोरी पर बयान को गलत तरीके से किया गया प्रस्तुत। और बद्रीनाथ धाम में बंद हुए आदि केदारेश्वर मंदिर के कपाट, तीसरे दिन वेद ऋचाओं का वाचन होगा बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और सीधे चलेंगे महाराष्ट्र के अकोला, जहां पर राहुल गांधी प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। राज्य की स्थिति पर नहीं, राज्य मतलब महाराष्ट्र के राज्य ये थी कि कम, हाँ, पार्टी की स्थिति कमजोर नहीं है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की विचारधारा, और ये मैंने जयराम रमेश जी से कहा, मैं आपको बताऊं सबसे अच्छा रिस्पांस महाराष्ट्र में मिला है। नेचुरल कांग्रेस है ये, और मुझे मतलब ये बात बहुत समझने को मिली है। ये यहां पे नेचुरल कांग्रेस है, मतलब ये डीएनए है कांग्रेस का। तो यहां कांग्रेस पार्टी मजबूत, कमजोर बिल्कुल नहीं। वैभव गंजापुरे, टाइम्स ऑफ इंडिया, प्लीज। देखिए, फ्यूचर तो आप प्रेडिक्ट करते हो, मैं तो करता नहीं हूं, मगर असर जरूर पड़ेगा, पॉजिटिव असर पड़ेगा। वैभव गंजापुरे। राहुल जी, जब आपका यात्रा खत्म होगा कश्मीर में, तो आप क्या बदलाव देखते हैं भारत में, और कांग्रेस पार्टी को कैसा? एक सवाल अंग्रेजी मीडिया भी हिंदी में पूछ रही है। अच्छा है, ठीक। ओके, हाउ इट विल बेनिफिट कांग्रेस व्हेन यू एंड योर यात्रा इन श्रीनगर? Look, I am not a soothsayer. I cannot predict the future. But you must have thought something. You asked a question. Let me answer the question. My job is to do what I see as my duty, and I felt that my duty, in a time when India is internally fractured, in pain, where violence is being spread across the country, where hatred is being spread across the country, I felt it is my duty to show that there is another way possible. That there is a way possible where you are affectionate and loving to people, where you can disagree with them, where you can say, I actually don't like your views, but I can still go to you and say, I don't like your views, but I'm ready to listen to your views, and I'm not going to beat you because I'm more powerful. I'm not going to thrash you because I'm more powerful. So I thought it was my duty as an Indian citizen to place that on the table. And that is the idea of the Bharat Jodo Yatra. Now, please don't misunderstand. It is not only my duty, and it is not only I who is thinking this. Large number of Congress people feel the same thing. And millions of people, farmers, youngsters, men, women, feel the same thing. So I think it's a very powerful thing, the Yatra. And I think if people think about it with a little bit of depth, they will realize that the principles that we are putting across here are not just political principles. They are principles that you can use in your life. They are principles that you can use with your brother, with your sister, with people you are working with. A little respect will not weaken India. It will only strengthen India. A little bit of affection, a little bit of love will only strengthen India. So that's the idea. Now what happens after the yatra, let's see. अभिनय देशपांडे, हिंदू। देशपांडे हैं? अभिनय देशपांडे नहीं आए।
I don't understand why people feel that hatred makes a country strong. I don't understand it. Right? I don't understand why people feel that being abusive, being nasty, being cruel makes a country strong. I think it makes a country weak. I think it is cowardice. And I think that's not what India is. I think India has shown the whole world. I remember I asked Nelson Mandela after he came out of jail 26 years. Right? I asked him, Mr. Mandela, you were in jail for so long, what gave you hope? He said, India's freedom struggle gave me hope. I said, what do you mean by that? He said, well, what Mahatma Gandhi taught. The fact that you should be compassionate even to your opponent. You should respect even your opponent. These are Indian values. They're the most powerful values. And in the world that we're facing today, with the United States and China and war here and there, this is the most powerful thing that we have. Why are we throwing it away? राहुल जी ने आपके साथ 40 मिनट गुजारे हैं। मैं राहुल जी से निवेदन करूंगा, प्लीज 40 मिनट हो गए हैं, प्लीज। मैंने पहले क्या कहा है, प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप एक ही ग्रुप के हैं। देखिए, नियम मत तोड़िए। मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा, आखिर में महाराष्ट्र की जनता के लिए अगर वो कोई संदेशा देना चाहते हैं, 2 मिनट बोल लें। नहीं, कोई सवाल नहीं, 40 मिनट हो गए हैं। सवाल आप प्रधानमंत्री जी से कीजिए। सवाल किससे करना है, उनसे कीजिए। महाराष्ट्र, प्लीज उनको बोलने दीजिए। प्लीज बैठ जाइए। महाराष्ट्र की जनता और तो आपको बता दें, राहुल गांधी महाराष्ट्र के अकोला में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे, जहां पर नफरत और डर को दूर करने को लेकर और कांग्रेस की भरपूर यात्रा को लेकर तमाम बातें शेयर कर रहे थे। फिलहाल खबर रुख करेंगे नैनीताल का, जहां पर हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के कैबिनेट से सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है। दरअसल यूकेडी ने हाई कोर्ट की हल्द्वानी में शिफ्ट किए जाने को पहाड़ विरोधी फैसला बताया है। इस संबंध में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने कहा है कि नैनीताल से हाई कोर्ट शिफ्ट किया जाना पहाड़ विरोधी मानसिकता का प्रतीक है। एरी ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा है कि नैनीताल से हाई कोर्ट शिफ्ट करने वाली मानसिकता वही है जो राजधानी को गैर सैन्य शिफ्ट किए जाने का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि राजधानी के मसले को देहरादून बनाम गैरसैंण करके सरकार ने उलझाया है। इसी मानसिकता के तहत हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने की बात हो रही है। यह समझ से परे है कि हाई कोर्ट के नैनीताल में होने से केस को क्या नुकसान हो रहा है। आज ही हमको सूचना मिली है कि प्रदेश की कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि हाईकोर्ट जो अभी तक नैनीताल में से संचालित था उसको हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है ये कौन सी मानसिकता काम कर रही है पहाड़ के खिलाफ। ये वही मानसिकता है जो स्थायी राजधानी को, परमानेंट कैपिटल को गैरसैंण में जाने से रोकती रही है। दिनेशपुर में बाबा खाटू श्याम के दरबार में दर्शन कर लुत्फ उठाने दूर दराज से लोग पहुंचे और हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बताते चलें कि जय भवानी जागरण समिति की ओर से बुधवार देर रात को श्री श्याम संकीर्तन मौसम का पहला आयोजन टनकपुर चौराहे काली नगर रोड में किया गया, जिसमें कि बाबा श्याम की भव्य एवं आकर्षण दरबार सजाया गया। अखंड ज्योति, अलौकिक श्रृंगार व 56 भोग विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। संकीर्तन महोत्सव में बाहर से आया इन कलाकारों ने श्याम बाबा के भजनों की प्रस्तुति दी। रुद्रपुर के गायन अमन सांवरिया एवं आगरा से आए मेहमान कलाकार गोरी एवं शक्ति ने बाबा श्याम के सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी, जिसके बाद श्याम प्रेमी रात भर झूमते हुए दिखाई दिए।
29 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि विधानसभा सचिवालय की सत्र को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं और उन्होंने सभी विधायकों से यह अपील की है कि विधानसभा सत्र की कार्यवाही को ठीक प्रकार से चलाएं ताकि प्रदेश के मुद्दे उठाए जा सके। देखिए, विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड की पूरी तैयारी हमेशा से ही रहती है और इस वक्त भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। 500 से ज्यादा सवाल आ चुके हैं, तैयारी पूरी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी पहले की तरह सत्र अच्छे से चलेगा और सद्भाव के साथ चलेगा और जो विधायक हैं हमारे वो ज्यादा से ज्यादा सवाल उठाएंगे ताकि अपनी विधानसभाओं के बारे में वो सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके। देखिए, मैं बार बार इस बात को कह चुकी हूँ कि चीजों को बहुत ज्यादा पॉलिटिकली हम ना देखें, देखना भी नहीं चाहिए, मुद्दे नहीं बनाने चाहिए। हाँ, जेन्युइन चीजों को जरूर बोलना चाहिए। इस बार भी हम जो है प्रयास कर रहे हैं कि जो अगला हमारा सत्र हो वो गैरसैंण में हो। इस बार मौसम बहुत ठंडा था, इस कारण से हम लोगों ने जो सत्र है वो देहरादून में रखा है। सरोवर नगरी नैनीताल में 3 दिवसीय वर्ल्ड फेस्टिवल का आगाज हो गया है। वन विभाग के नारायण नगर स्थित हिमालयन बॉटेनिकल गार्डन में आयोजित वर्ल्ड फेस्टिवल में हिस्सा लेने देश भर से तमाम वन्य जीव प्रेमी नैनीताल पहुंचे हैं। वहीं बॉटेनिकल गार्डन में पद्मश्री अनूप शाह ने वर्ल्ड फेस्टिवल का शुभारंभ किया। देश के कई राज्यों से आए वर्ल्ड वॉचर नैनीताल के अलग अलग हिस्सों में 19 नवंबर तक पक्षी गणना का काम करेंगे, जिसके बाद इसे ऐप में डाउनलोड करेंगे। 3 दिनों तक देश भर से आए 40 से अधिक ये पक्षी विशेषज्ञ पंगूट भवानी 7 तल में पक्षी खोजेंगे। तो मैं आर्किटेक्ट हूँ बाय प्रोफेशन, आर्किटेक्ट प्लानर, लेकिन ये मेरा हॉबी है। और क्यों चूज़ किया? क्योंकि बर्ड वॉचिंग बहुत ही फैसिनेटिंग है, इंटरेस्टिंग है, यूनिक है और सब जगह बर्ड्स हैं, इसीलिए बर्ड सर्वे है नैनीताल में। लेकिन पिछले 4 दिन से मैं साताल में थी और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बर्ड्स मिले जो हमें साउथ में नहीं मिलते हैं। सो अगेन तो मेरे केस में क्या है, मतलब मैं वैसे कॉर्पोरेट में जॉब करती हूँ, मगर कोविड के समय जब लॉकडाउन था तो घर में अकेले थी, तो उस टाइम पर मैं मतलब चिड़ियाओं की आवाज़ें सुनने लग गई। फिर मैं उनके अलग अलग तरह के जो उनका जो व्यवहार या बिहेवियर होता है उसमें मैं ध्यान देने लग गई और उसने मुझे इतना आकर्षित किया कि फिर मतलब ये मेरी मतलब आप बोलो मेरी मेन हॉबी बन गई है। जनपद उधम सिंह नगर के सितारगंज में सोमवार को NH 74 पर नया गांव भट्टा के पास स्कूल बस और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें लगभग 22 छात्राओं को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं एक शिक्षिका तथा एक 14 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई थी, जिसका संज्ञान लेकर प्रशासन अब हरकत में आ गया है। इस मामले में जनपद उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने भी यातायात नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के आदेश दिए हैं। इसी क्रम में आज सितारगंज में ARTO ने चेकिंग के दौरान 3 स्कूल बस, 2 टेम्पो, 2 प्राइवेट वाहनों को जो क्षमता से अधिक छात्रों को सवारियां लेकर जा रहे थे पकड़कर सीज करने की कार्यवाही की है तथा उनके पेपर भी चेक किए हैं। साथ ही उनके DAL और परमिट काउंसिल भी संस्तुति किया गया है। इसमें हम लोगों ने आज सुबह से अभियान चला रखा है, खासकर स्कूल बसों के खिलाफ और जो प्राइवेट गाड़ियां हैं जो स्कूल के बच्चे ढोती हैं उनके खिलाफ, और खासकर ऐसे टेम्पो मैजिक जो कि ओवरलोडेड बच्चे ढोते हैं उनके खिलाफ जिनके पास फिटनेस परमिट नहीं है। तो कुल मिलाकर इस तरह के सभी कैटेगरी में जो वाहन बंद किए गए हैं, हम लोगों ने 12 वाहनों का चालान किया है और 7 गाड़ियां हमने यहाँ पे मंडी परिषद में एक सरकड़ा चेक पोस्ट पे भी बंद की है हमने और 6 वाहन यहाँ बंद किए हैं। कुल मिलाकर 7 वाहन हम लोगों ने सीज किए हैं और उनके DL के लिए एंड परमिट के लिए रिकमेंडेशन किया है कैंसिलेशन के लिए। इसमें हमारे पास 3 स्कूल बसें हैं, बाकी हमारे 2 जो है प्राइवेट वाहन हैं। हरिद्वार जिले के रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में नवोदय नगर क्षेत्र की रो नदी में खनन
की बोली प्रक्रिया खनन अधिकारी प्रदीप कुमार तथा एसडीएम पूनम सिंह राणा की देखरेख में संपन्न की गई। उक्त खनन की बोली प्रक्रिया में 8 लोगों द्वारा प्रतिभाग किया गया। एसडीएम पूरन सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार निर्धारित मूल्य से ज्यादा रेवेन्यू उक्त क्षेत्र में खनन की बोली से प्राप्त हुआ है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि उक्त बोली प्रक्रिया में रो नदी में 2 लॉट के लिए बोलियां लगाई गई हैं, जिनमें से एक लॉट की बोली 66 लाख रही, तो वहीं अनहोट लॉट की बोली 1 करोड़ 23 लाख के पार है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त कार्य की समय अवधि 6 माह की रहेगी, जिसमें टोटल रॉयल्टी प्लस टैक्स पहले जमा करना होगा और यदि कोई उक्त खनन सामग्री का स्टॉक करना चाहता है तो उसे स्टॉक के लिए भी अलग से परमिशन लेनी होगी। इसी क्रम में रो नदी और खन्नौल नदी में 2 लॉट लिंक किए गए थे और उसका प्रॉपर विज्ञप्ति वगैरह प्रकाशित किया गया था और आज उसमें एक निगरानी की प्रक्रिया रखी गई थी, जिसमें कि 8 से 10 लोगों के द्वारा प्रतिभाग किया गया और उसमें जो कंडीशन थी, जैसे लोकल निवासी होना चाहिए, एक अमाउंट उनको ऑलरेडी जमा करना था, तो वो सब चीज़ें जिन्होंने फुलफिल की थी उनकी निगरानी प्रक्रिया आज की गई। तो दोनों जो लॉट थे, जिसमें कि 1 करोड़ के आसपास था और 1 करोड़ के आसपास था, तो दोनों की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तहसील हरिद्वार के अंतर्गत नवोदय नगर में आपदा से क्षेत्र प्रभावित हो रहा था, जिसमें हमने रौ नदी में 1 लॉट बनाया था और जिसके जस्ट बगल में हरनू नदी में 1 लॉट बनाया था। जो रौ नदी में लॉट बनाया था उसकी बोली 66,99,000 से स्टार्ट थी, जिसमें 8 लोगों ने प्रतिभाग किया। 8 लोगों में से एक श्री कुलदीप सिंह ने उच्च बोली बोल के 68,51,000 में बोली को प्राप्त किया। उत्तराखंड बार काउंसिल के आह्वान के बाद नैनीताल में भी अधिवक्ता हड़ताल पर रहे। नैनीताल हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने भी हड़ताल का पूर्ण समर्थन किया और न्यायिक कार्यों में विरत रहते हुए इस दौरान अधिवक्ता कोर्ट से नहीं गए। आपको बता दें कि अधिकांश न्यायिक अधिकारियों द्वारा अधिवक्ताओं से गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं किए जाने के चलते बार काउंसिल ने हड़ताल का आह्वान किया है, जिसको लेकर आज वकील हड़ताल पर हैं। इसी सिलसिले में जो है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी अपनी कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से पारित किया कि जो हमारी एपेक्स बॉडी है, बार काउंसिल है, उसके कॉल का हमने समर्थन किया है और हम लोग भी जो है न्यायिक कार्य से आज की तिथि में जो है विरत रहेंगे, जिसकी सूचना हमने मुख्य न्यायाधीश जी को भी दे रखी है और उसमें निवेदन भी किया गया है कि आज के जो भी केसेस है उनमें कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए। लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हल्दू चौड़ा की ग्राम पंचायत जग्गी बंगार में विकास कार्यों में 45 लाख से अधिक का घोटाला हुआ है। इसका खुलासा मांगी गई आरटीआई से हुआ है। खुलासा होने के बाद भी गांव की ग्राम प्रधान के पति एवं घोटाले में शामिल अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अब आरटीआई कार्यकर्ता ने घोटाले की शिकायत क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री को पत्र सौंप कर की है, लेकिन केंद्रीय मंत्री को शिकायती पत्र सौंपे 4 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक ढंग से जांच नहीं हो पाई है। इधर मामले के निष्पक्ष जांच एवं दोषियों पर कड़ी कार्यवाही के लिए नाराज आरटीआई कार्यकर्ता ने अब मामले को हाई कोर्ट में ले जाने की चेतावनी दी है। मैंने ग्राम जग्गी बंगार के लिए आरटीआई का आवेदन किया था, जिसमें मुझे आरटीआई प्राप्त हुई और जब मैंने स्थल में जाकर देखा और आरटीआई से मिलान किया तो कार्य वो कराए नहीं गए थे। उसमें बहुत ही भारी कमी पाई गई थी। तो जिस पर मैंने मौके पर ही सीडीओ साहब को कंप्लेन लिखी और उनके द्वारा जांच समिति का गठन किया गया, परंतु आज 15 नवंबर तक जांच समिति नहीं आई है। जांच समिति का तिथि का दिनांक थी 10 नवंबर जो आनी थी, परंतु आज इससे 5 दिन बीत चुके हैं, जांच समिति अभी भी नहीं आई है, जो कि अधिकारी को कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान को समर्थन करने का एक मुझे लगता है कि उनके द्वारा समर्थन किया जा रहा है, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। खबरों में बात करेंगे पौड़ी की। पौड़ी जिले में अंकिता भंडारी वीआईपी की शिनाख्त के लिए अंकिता के मित्र पुष्प को लक्ष्मण झूला थाने के आईओ मनोहर सिंह रावत ने भेजे थे। खानपुर विधायक पत्रकार उमेश कुमार के फोटोग्राफ पुष्प के उमेश कुमार के होने से इनकार करने पर तहकीकात क्यों कर दी गई बंद? क्या उमेश कुमार को वीआईपी के नाम पर फंसाने की थी साजिश? 16 सितंबर को पुष्प ने बनवंतरा रिसोर्ट में दिखा था वीआईपी टाइप का आदमी जो आधा दर्जन बाउंसरों से था लैस। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर ऋषिकेश बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से विरत रहे। दरअसल राज्य की समस्त बार एसोसिएशनों की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है, जिसमें न्यायिक अधिकारियों द्वारा अधिवक्ताओं के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं किए जाने का विरोध किया गया था। इसको लेकर आज ऋषिकेश बार एसोसिएशन सहित उत्तराखंड के सभी बार एसोसिएशन ने 1 दिवसीय न्यायिक कार्यों से विरत होकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। माननीय बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने एक प्रस्ताव पारित किया। सभी बार को अपने बैठक में बुलाया था, अध्यक्ष सेक्रेटरी को, कि न्यायिक अधिकारी पूरे उत्तराखंड में सहयोग नहीं कर रहे। तो इसी क्रम में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने आज 17 नवंबर 2022 को संपूर्ण उत्तराखंड में सभी अधिवक्ताओं को कह रखा कि आप कार्य से पूर्ण विरत रहेंगे और अपनी अपनी बार एसोसिएशन के बाहर पे शांतिपूर्वक धरने बैठेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने समाधान एनजीओ द्वारा प्रदेश के जनपदों में वृद्ध आश्रम खोलने व आश्रमों में अन्य सभी सुविधाओं के साथ ही चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 7 दिसंबर तक जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तिथि नियत की है। ये पहले से ही सीनियर सिटीजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने 2018 में एक पीआईएल करी हुई थी और 2018 में इसमें डायरेक्शन दिए गए थे कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट में सेक्शन 19 में जो डायरेक्शन दिए हैं उनको फॉलो करें। उस ऑर्डर को आज के दिन तक भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है और उस ऑर्डर में स्पेसिफिकली ये भी कहा गया था कि अगर इस सब के लिए पर्सनली सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होंगे और इसको पूरी तरीके से मॉनिटर करेंगे, लेकिन इसमें आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से समाधान एनजीओ को आगे आना पड़ा है और उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये पीआईएल डाली है। खबर रुड़की से, जहां सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के एक नशा मुक्ति केंद्र पर युवक ने मारपीट और मानसिक टॉर्चर का आरोप लगाया। वहीं युवक का कहना है कि नशा मुक्ति के कर्मचारी उनसे जबरन बाहर से नशे का सामान मंगवा रहे हैं, इसलिए युवक मौका देखकर नशा मुक्ति केंद्र से फरार हो गया। आपको बता दें कि युवक ने इसकी शिकायत अपने परिजनों के साथ नजदीकी सिविल लाइन कोतवाली में की है और तहरीर देकर मुकदमा भी दर्ज करवाया है। वहीं जिस संस्था पर नशा मुक्ति करने का लोग भरोसा करते हैं, वही संस्था खुद पीड़ित युवकों को नशा खरीदने को कह रही है। मेरे ऊपर वहाँ ये दबाव आ गया कि मुझे पूरी रात स्टूल पे खड़ा करके रखते थे, पूरे दिन टॉर्चर करते थे और टॉर्चर करते थे बहुत ज्यादा। अगर पेशाब करने के लिए बोल रहा तो बोल रहा कि अब से 2 घंटे बाद पेशाब करने जाना है, नहीं तो कोई डायरेक्शन नहीं है, आप पेशाब करने के लिए स्टूल से नीचे नहीं उतरोगे। और मेरे से बोलते थे जब तक तो स्मैक नहीं खरीद के ला के देगा, जब तक हम तुझे बिल्कुल भी स्टूल से नीचे नहीं उतारेंगे। टॉर्चर करते थे। दरअसल मामला ये है कि हमने जो हमारा भाई है, हमने उसको यहाँ पे एक अनमोल जीवन समिति नशा मुक्ति केंद्र है, उसमें हमने उसको एडमिट कराया था। कुछ टाइम रहा तो हम उसे रिटर्न लेके भी आ गए थे, तो फिर 2 दिन के बाद फिर से वो ऐसे ही नशा करने लगा था, तो फिर हमने उसको दोबारा उसी नशा मुक्ति केंद्र में जब डाल दिया तो सिचुएशन कुछ ऐसी ही चल रही थी। तो बता रहे थे कि मतलब मिल भी नहीं सकते आप इससे। तो कुछ पता चला कि ये नशा मुक्ति केंद्र वाला जो है, हेमंत इसका नाम है, ये जो है ना कि जो उसके पेशेंट है उससे नशा खरीदवाता है।
सिविल लाइन कोतवाली के अंतर्गत एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें नशा मुक्ति केंद्र में एक जो रिहेबिलिटेशन के लिए जो व्यक्ति था उसके साथ मारपीट का प्रकरण संज्ञान में आया। इसमें तहरीर हमें प्राप्त हो गई है, उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर जो है कार्रवाई इन पे की जाएगी। भारत की राजनीति में हिंदू मुस्लिम का विवाद हर चुनाव में देखने को मिलता है। चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से हिंदू मुस्लिम वोटर्स को लुभाने का कार्य करती हैं। देश आजाद होने के वक्त भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। बड़ी संख्या में मुस्लिम पाकिस्तान गए थे तो पाकिस्तान क्षेत्र के रहने वाले हिंदू भारत आए थे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य आवी मुक्तेश्वरानंद ने इसको लेकर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि विभाजन के वक्त मुस्लिम धर्म के लोग पाकिस्तान चले गए थे, मगर काफी संख्या में आज भी मुस्लिम समाज के लोग भारत में। अगर इसी तरह विभाजन करना था तो फिर अखंड भारत ही सही था। वहीं दिल्ली और लखनऊ की घटना को लेकर शंकराचार्य आवी मुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि जनता से अपील करता हूं कि ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सबको जागरूक होना पड़ेगा। रोए खड़े हो जाते हैं, सुन करके दिल दहल जाता है। ऐसी घटनाएं एक के बाद एक आप लोग रिपोर्ट कर रहे हो, चीजें हो रही हैं, तो बहुत दुख होता है ऐसी घटनाओं को सुनकर। तो हमारा इसमें यही कहना है कि जो बहन चली गई उसके बारे में तो अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन घटनाओं से सबक जरूर सीख सकते हैं। जो बहनें अभी हमारी विद्यमान हैं, उन बहनों से हम जरूर अपील करना चाहेंगे, बड़ी मार्मिक अपील करना चाहेंगे। एक भाई समझ करके हमारी अपील को वो लोग विचारें, सोचें, समझें कि हमारे साथ ऐसी घटना कल को ना हो। अब कोई दूसरी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे।